Alright, today we are going to take a look at what is a memo. I have already discussed what is a memo. So we are recapping it according to the book which you have. This is your book. You all can see the screen. So, what is a memo? What is a memo? What is a memo? Tell me. This was already discussed in the last class. Yes, tell you what is a memo? Memo is a short note or document or other communication that The helps word the memo member- is taken from a English word. Latin word. Latin word. And what does that mean? Ma'am, which means memoranda. Why this has become blue? Word memo, a Latin word which means to be reminded. A reminder. And what are the types of memo? Two types. Vertical and horizontal. What do you understand by vertical? Yes? Higher post to lower post. What are the types of styles? I am only reminding you. I am only revising. What are the types of memo? Can be written in a group, can be written individually. Now, आप लोग सब भूल कैसे जाते हैं? How can you forget, huh? It can be written individually and it can be written in a group. It can be either vertical or it can be horizontal. And what do you understand by vertical memo? Memo that passes from superior to subordinate or from top to down in an organization or a company.
now I'm going by your book. I've already discussed this earlier, but I'm recapping it according to your book. So the word memo was derived from the Latin phrase which means memorandum. Short form is a memo. You already have come to know that it can be written in two styles. It can be written individually, one to one, and it can be written in a. So the phrasal verb memorandum, which means to mention, to remind, to remember, to recount, to relate, do not forget, which means it must be can't you read? It must be remembered. आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? आपने लॉगिन नहीं किया क्या? आप लोग किसी ने लॉगिन नहीं किया? Please look into your books because this is what you have in your hand, which means it should be remembered. It is therefore a note, a document, or other communication which is internal. You cannot write a memo outside your organization. जब भी मेमो लिखेंगे आप, वो ऑफिस के अंदर होता है. या तो आप सेम लेवल पे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और you are in the top position, you can write to the person working under you. So it is a document, written document, that helps the memory by recording events or observations on a topic. In other words, memos are short notes. What are they? Short notes which is of great importance and which needs to be remembered. Memos are used within organization to communicate everything from routine detail to complete proposal and reports. As I said, memos are supposed to be written officially or within the organization. इसका मतलब होता है कि ऑफिस के अंदर में मेमो लिखते हैं आप, इनसाइड. अगर ब्रांचेस 4 ब्रांच है तो कहीं ब्रांच में भी लिख सकते हैं. इट शुड बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग आउटसाइड. Memos are often only a few short paragraphs. Memos can be very short, one paragraph. Memos can be 2 short paragraphs. लेकिन मेमो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, because it is a reminder. You cannot send a reminder of 5-6 pages. Reminders have got to be always short, simple, so that the other person can understand what is to be remembered. So memo writing is something of an art. तो आर्ट कैसे है? कम शब्दों में बहुत कुछ लिख देना होता है. तो that has to be artistic. जिसको नहीं आता अपनी बात कहने में, अगर बहुत लंबा कहना पड़ रहा है, it means I lack communication. But if I can make you understand in one simple sentence, it means I am skillful. आपको मैंने 1 लाइन बता दिया. अगर 1 लाइन को समझाने के लिए मुझे 1 घंटा बोलना पड़े, it means कहीं पर तो प्रॉब्लम है. I do not know how to make you understand. सिंपल तरीके से बात को समझाने की कला. लेटर्स मेमो नहीं होता है, मेमोज लेटर नहीं होता है. क्यों? फॉर्मेट अलग होते हैं. You have seen that in letter writing there is block style, semi block, modified block. इसमें कोई स्टाइल नहीं होता है.
बट येस देयर इज़ अ फॉर्मेट, और फॉर्मेट से आप समझते हैं कि ये मेमो है, दिस इज़ नॉट अ लेटर, दिस इज़ अ मेमो। और लेटर देख के आप समझते हैं दिस इज़ अ लेटर, दिस इज़ नॉट अ मेमो। कैसे? फॉर्मेट देख के। A memo can call people to action or broadcast a bit of timely news. Supposing in a company there is an emergency, कुछ हो गया है, there is some emergency, कुछ मीटिंग सडनली करना पड़ रहा है, तो क्या होता है, इमीडिएट मेमो आ जाता है। और जैसे हम लोग क्लास ले रहे हैं, सडनली कुछ ऐसा आ गया जो कि ऑल टीचर्स कम डाउन साइड, मेमो अगर आ जाता है, हम लोग देखते हैं कि एवरीबडी कम डाउन स्टेयर्स, इमरजेंसी मीटिंग। तो क्या होता है, सारा काम छोड़ के जाते हैं हम लोग। समथिंग जो कि सडनली होता है और समथिंग जो कि प्लान्ड होता है, तो सडनली भी होता है, वो भी मेमो जाता है, और कुछ प्लान करना होता है। जैसे हमको क्लास नहीं लेना है अगर, तो आपका क्लास खाली तो जाएगा नहीं, तो मैं किसी और को बोल के जाऊँगी या मैं मेमो करके जाऊँगी, काइंडली एंगेज माई क्लास बिकॉज आई विल नॉट बी फ्री। जब हमने प्लान किया पहले से तब ना, या सडनली को जाना पड़ गया, तो सडनली भी कुछ जाना पड़ गया, तो हम देखेंगे कौन कौन अवेलेबल है, उसके नाम से मेमो हम लिख के जाएंगे, उसको दे के जाएंगे, राइट। और अगर मैंने बोला, बस मैंने लिखा नहीं, मैं बस बोल के चली गई क्या मुझे जाना, आप जरा क्लास ले लीजिएगा, और उसको अगर वो भूल जाता है तो क्या होगा? मैं तो निश्चिंत होकर चली गई, मैंने बोल दिया था क्लास ले लेना, और उस बंदे को याद ही नहीं रहा, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? What can be the problem? Tell me. क्लास खाली जाएगी, मतलब काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर किसको ब्लेम करेगा मैनेजमेंट? किसको ब्लेम करेगा? मुझे ब्लेम करेगा या मैंने जिसको कहा उसको ब्लेम करेगा? क्यों हमको, मैं तो कह के गई। बताओ मैनेजमेंट किसको मेमो डालेगी इस बात के लिए कि भाई BCA फर्स्ट स्टेप का क्लास नहीं हुआ, तो गलती किस हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस, मी या दैट पर्सन? मेरा क्लास है और मैं तो उसको बोल के चली गई थी, तो मैं कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो गई? There is no proof. That is what बिजनेस कम्युनिकेशन में रिटन डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं लाख बोल के चली गई, मैं रिक्वेस्ट करती रह गई आधे घंटे तक, नहीं आप दे लीजिएगा, लेकिन वो नहीं लेता है। और अगर मेरे पास प्रूफ है तो वो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज मेरे पास प्रूफ तो था कि मैंने डॉक्यूमेंट उसको दिया था, तो वो कॉपी तो मेरे पास भी होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए? ताकि आई कैन शो द प्रूफ कि दिस वॉज द मेमो विच आई इशूड बट द पर्सन हैड नॉट। दैट इज़ वाई मेमो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इससे आप ये भी समझते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So, a memo can call people to action or broadcast a bit of timely news. With memo writing, तो जितना छोटा लिखेंगे, the shorter, the better.
Now the question is, what are some typical uses of memo? Write the question. What are the uses of a memo? Write the question. What are the uses of a memo? What are the uses of a memo right now? Number 1, to inform others about new changes. To inform others about new or changed policy. कोई पॉलिसी चेंज हुआ है, कोई न्यू चेंजेस हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स को, प्रोसीजर्स को. So to inform others about new or changed policy, procedure or organizational details. कहीं कोई बदलाव हो गया है. फॉर एग्जाम्पल एक मेमो आ सकता है कि ऑल द क्लासेस ऑफ PPU विल बी शिफ्टेड टू विवेकानंद ब्रांच. तो समथिंग विच इज़ न्यू, एनी पॉलिसी विच इज़ न्यू. आपका टाइमिंग चेंज हो सकता है. आपका जो 9 बजे शुरू होता है, आपका शुरू होगा आपका 1 बजे से. एनी चेंजेस कैन बी इन्फॉर्म थ्रू अ मेमो. Number 2, when there is an emergency, meetings are announced. Any emergency meeting, any event, or anything of importance. For immediate action. Immediate action के लिए कोई मीटिंग करना है तो भी मेमोज के थ्रू आप लिख सकते हैं. जब आपको मेमो मिलता है तो मेमो देखते ही समझ में आता है कि समथिंग इज ऑफ इम्पोर्टेंस, अर्जेंट. लेटर में ऐसा नहीं होता है. लेटर कभी भी पढ़ लिया, लेकिन मेमो अगर आता है तो सारा काम छोड़ के हम लोग उसको पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है भाई. लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज़, राइट. टू प्रिवेंट डिसीजन डायरेक्टिव्स, सॉरी, टू प्रेजेंट डिसीजन डायरेक्टिव्स, प्रपोजल, ब्रीफिंग्स. किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन, किसी भी तरह का डिसीजन जो हम लोग लेते हैं ऑफिस में, किसी भी तरह का डायरेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शंस, any proposal, any briefing, anything which the person from the people working in the organization should know. So किसी भी तरह का information share करने के लिए memos are used. And the last part is to share any official document. Share any document which can be done horizontally. The top boss, communication flow memo का पहले से आप जानते हैं. Communication flow is downwards and horizontal. Upward नहीं रहता है. You cannot write a memo to your boss. फॉर्मेट बहुत सिंपल रहता है. सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे? मेमो लिखेंगे.
In the center of the page, heading will be memo. और टू मतलब जिसको मिलने वाला है. फ्रॉम कौन भेज रहा है. अगर आप भेज रहे हो उनको तो टू जिसको भेज रहे हो उसका नाम. मैं भेज रही हूँ सिकंदर को तो टू सिकंदर. आई होप यू नो सिकंदर ना. सिकंदर पीपीयू में बहुत. दैट बॉय इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. बहुत मेहनत. जितनी भी लेसन पढ़ाई होती है उसकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे ज़रूर भेजता है कि मैम देखिए मैंने सही बोला है कि ऑल द लेसन्स ऑल द स्टोरीज ही इज़ फॉरवर्डिंग इट टू मी. तो टू जिसको हम भेज रहे हैं, फ्रॉम अपना नाम, एंड सब्जेक्ट हेडिंग्स के साथ लगा रहता है. सब्जेक्ट क्या है. सपोजिंग आई एम सेंडिंग अ मेमो टू रवि सोनी सर तो फ्रॉम क्या लिखेंगे. टू किसको लिखेंगे. टू रवि सोनी. फ्रॉम उसके पहले ही मेमो के बाद हम सब्जेक्ट ज़रूर लिखना चाहेंगे. या फॉर्मेट आप बदल सकते हैं. पहले टू फ्रॉम लिखिए, बाद में हेडिंग लिखिए, बाद में सब्जेक्ट लिखिए. तो टू रवि सोनी फ्रॉम संजना मैम. सब्जेक्ट एंगेज माई क्लास फ्रॉम 10 to 11. एंड ऑफ कोर्स डेट तो ज़रूरी होता ही है. सपोजिंग हम डेट नहीं डालेंगे तो क्या होता है. कंफ्यूजन होता है कि कब है. आज लेना है कि कल लेना है कि नेक्स्ट मंडे को लेना है, कब है. तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. As already discussed, memos, the styles of memo can be written in a group or individually. अब टेक्निकल हो कैसे करना चाहिए इसको. सबसे पहले शुड बी कंसाइज. कंसाइज मतलब छोटा, टू द पॉइंट लिखिए. डू नॉट राइट अननेसेसरी. जैसे हमको उनको बताना है कि मेरा क्लास 10 से 11 ले लीजिए. अब मुझे ये नहीं लिखना. मैं एक्चुअली आपको बताना मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिन नहीं रहूँगी. मुझे घर जाना है, मेरे घर पे पूजा है, इसलिए आई कैन नॉट कम. आई विल नॉट राइट ऑल दोज थिंग्स. वो ज़रूरी है क्या. तो कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट. मेक योर सेंटेंसेस स्ट्रेट बिफोर यू स्टार्ट. देन प्लान व्हाट यू वांट टू से एंड इन व्हाट ऑर्डर. सबसे पहले सोच लीजिए कि क्या बोलना क्या है हमको है, एंड तब स्टार्ट राइटिंग. यूज़ अ मेमो लेआउट टू हेल्प योर रीडर. हेडिंग, बुलेटेड, लिस्ट, वाइट स्पेस एज अप्रोप्रिएट. जितना क्लियर मेमो रहेगा उतना इजीली रेड होगा. अगर मुझे बुलेट्स में लिखना है कि 10 से 11 BCA में ले लीजिए, 11 से 12 BCA 2 में ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे हम. बुलेटेड लिखेंगे कि एक साथ लिखेंगे. क्यों. बुलेट्स में लिखने का पर्पस क्या है. ताकि लोग समझ सकें अलग अलग चीज़ें. सेपरेट फॉर क्लैरिटी. एंड इट शुड बी कंप्लीट. कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं. एवरीथिंग हैज़ टू बी कंप्लीट so that the person will look at the memo and start taking action. Okay, think of what question you want to be answered and ask them. क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो खुद ही आंसर करके वहाँ पर लिख दीजिए मेमो में, ताकि बंदे को क्वेश्चन पूछने का कोई स्कोप नहीं रहे.
And then of course the last point is read, reread, revise, copy edit and proof. The styles of memo already done. आपके किताब में है सैम्पल मेमोरेंडम. यहाँ सैम्पल आपने लिखे होंगे मेमोरेंडम हेडिंग हो गया टू ऑल स्टाफ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेमो आप अपना एक मेमो बनाइए. अभी बनाओ. आप लोग असाइनमेंट में लिखिएगा इसको. अभी आप मेरे सामने बनाइए. पहले हेडिंग लिखिए मेमोरेंडम. आप अपने दोस्त पीपीयू के बच्चों को लिख रहे हैं कि हम लोग रंगोली कंपटीशन करने वाले हैं, उसके लिए लिख रहे हैं आप. ठीक है. तो आप टू ऑल बी से सब्जेक्ट रंगोली कंपटीशन लिखो. अपडेट बताना पड़ेगा क्या. मैंने कहा इस आधार पे एक बनाओ. देखिए मैथ एंड बिजनेस इंग्लिश बिना लिखे बिना किए नहीं होने वाला. जितनी लिखोगे समझोगे. यू लर्न बाय डूइंग ओनली. फ्रॉम का अपना नाम लिखिएगा. फ्रॉम योर नेम BCA-AKU. इसने क्या लिखा है? टू ऑल स्टाफ मेंबर्स आनंद मूर्ति जनरल मैनेजर. फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स. इसने ये मेमो दिया है कि सारे के सारे लोग जितने भी काम करते हैं सभी अपने घर का नंबर दे दीजिएगा ताकि इमरजेंसी में हम उन लोगों को कांटेक्ट कर सकें. और किसको देना है? पूजा वर्मा को आप लोग अपना घर का कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा. तो ये मेमो है. इसको मत देखो ना, तुमको अपना लिखना है. फॉर्मेट देख लो. आपको लिखना ये है. सब्जेक्ट बता दिया हमने रंगोली कंपटीशन. और आप कैसे क्या लिखेंगे आप जानें. चलिए do this for your homework and come back to the next class. ठीक है. Alright. Do this homework and come back next class with this memo. That's it.